Hello students, good afternoon. Welcome in our next lecture of civics, lesson number 2nd. Students, before that, the name of the lesson is what is democracy and why is democracy. Before this lecture, we discuss about the definition, why the definition is important of democracy. So we learn about that. Next, we also discuss the basic features of democracy. After that, we discuss on why democracy, that topic, and today we are going to discuss on the topic of arguments against democracy. Arguments against democracy means why the democracy is not suitable for India or any other country. So that is the arguments here, some arguments here for against of the democracy. The first one is, we will discuss the arguments of democracy. The first one is leaders, that is the against of democracy. The first one is leader keep changing in democracy. Leaders keep changing means, see that in our India, after 5 years we conduct the election over there, means again and again we change our leaders. For example, our PM change every year, but from the majority, the last year means 2014, the BJP captured the many of the seats over there, and that's why PM Narendra Modi Narendra Modi became our first prime minister over there, means on that 2014. And again, when we conduct the election, again the BJP captured many of the seats over there, and that's why again Narendra Modi became the PM over there. So after 5 years our leaders change over there, means the leaders are not stable in our India. This leads to instability. Instability means एक स्थिरता नहीं है उनमें, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल इस साल के लिए 5 साल के लिए अगर नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे काम किए, नेक्स्ट ईयर जब इलेक्शन होगा 5 साल के बाद, तो हो सकता है कोई दूसरे पीएम बन जाए, तो जो भी काम इन्होंने किए हैं हो सकता है वो उनका फॉलोअप अच्छे से ना ले पाए, तो एक स्टेबिलिटी उनमें नहीं है. तो दैट इज़ द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी. मीन्स some people thought that there should be a stability in leaders, but I think my opinion is that is right to instability in the leaders. नहीं तो इससे क्या होता कि हर एक लीडर किसी भी कंट्री को अपनी एक हेरिटेज प्रॉपर्टी समझने लगता. सो इट इज़ बेटर टू चेंज द लीडर्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड. सेकेंड, democracy is all about the political competition. Democracy is all about the political competition and power play. There is no scope for morality. No scope for morality. It is only politics in democracy. आज सत्ता हासिल करने के लिए बहुत से लीडर्स आपस में क्या क्या करते रहते हैं, हमें देखते हैं हम कि जैसे महाराष्ट्र में देखो शिवसेना है, तो उनके जो अपोजिट लीडर्स है बीजेपी वाले देवेंद्र फडणवीस, तो वो उनकी एक से एक छोटी से छोटी गलती भी वो ढूंढ निकालते हैं. यानी अच्छा किया, उनके पीछे भी उनके एक निगेटिव माइंड सेट रहता ही है, निगेटिव ओपिनियंस उनके रहते ही है. तो इस तरह से मोरालिटी के लिए यहाँ पर कोई चांस नहीं है. इट इज़ ओनली अ पावर प्ले ऑफ पॉलिटिशियंस फॉर अ पॉलिटिक्स. नेक्स्ट, so many people involved in democracy. See that so many people have to be consulted in democracy, that is leads to delays. So many people means what? See that our India is divided into 3 level system. For example, suppose that is our India, that is local level, means the local level is related to the villages and towns. Second, district also, district, villages and towns, that is local level. On that local level many political systems work over there. For example, for the village and towns area, many gram panchayat, gram sabha, panchayat samiti is located over there. Next, for the district level, that is municipal corporation. For our Jamner Gram Panchayat is there. So all this institution handle the works over there,
And next, the next stage is state level. State level. It is related to the state, particular states, means our India divided into near about 27 states over there. तो जितनी भी स्टेट्स है वो सब अपना अपना कारोबार, अपना अपना फंक्शंस अकेले करते हैं, और बाकी जो फाइनल है सेंट्रल लेवल मीन्स जिसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं, तो यहाँ पर पूरे रिपोर्ट वो फॉरवर्ड करते रहते हैं। इस तरह से ये लेवल में डिवाइड है 3 लेवल में। तो इससे क्या होगा, देखो अभी विलेज की अगर हम बात करें, लोकल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट और विलेज है, तो यहाँ पर नियर अबाउट 100 पीपल्स तो भी हो गया, मिनिमम हम समझ लेते हैं 100 मेंबर्स आर देयर। नेक्स्ट स्टेट लेवल, नियर अबाउट 200 मेंबर्स आर देयर। ऑन अ सेंट्रल लेवल नियर अबाउट 300 मेंबर्स, मीन्स कितने हो गए 600 टोटल। कितने हो गए, नियर अबाउट 600। सो इससे भी ज़्यादा नंबर है, बट एटलीस्ट हम कम से कम 600 एक गेस्ट करते हैं। तो इतने सारे लोग अगर यहाँ पर इन्वॉल्व है तो इससे क्या होता है, कामकाज करने में डिले हो जाता है। ठीक है, इट्स डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू डिले। कोई भी काम करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गांव है, ठीक है, सपोज अगर कोई विलेज एरिया है, सपोज गारखेड़ा है, सपोज गारखेड़ा है, तो गारखेड़ा में हमें अगर रेलवे स्टेशन बनाना है, रेलवे स्टेशन यहाँ से पास करना है भुसावल से, इधर से, ठीक है, तो यहाँ से हम पहले डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद हम स्टेट में जाएंगे, और स्टेट में सेंट्रल में। तो ये सारे ये काम होते होते, सपोज़ अगर हमने 2020 में इसको शुरू किया है, तो हो सकता है वो 2025 में आकर उस पर वर्क हो जाए। इतना सब कुछ, इतना डिले हो जाता है, क्योंकि एक मेंबर से दूसरे मेंबर, एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट के, एक लीडर के पास से दूसरे लीडर के पास वो चेंज होती रहती है। सो इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम फॉर वर्किंग। Elected leaders do not know the best interests of the people. See that. The elected leaders do not know the best interests of the peoples. For example, just see that. Elected leaders do not know the best interests of the people. यानी जो भी इलेक्शन में लीडर्स चुनाव जीत कर आते हैं, उनको लोगों का इंटरेस्ट नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो, अभी 2020 शुरू है, आज हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी। एक एग्जांपल लेते हैं हम। अभी इनको पता है कि लोगों को क्या चाहिए, नियर अबाउट फटाफट डिसीजन वगैरह जो भी है सब कुछ। तो हो सकता है आगे चलकर जो भी पीएम बने, तो उनको लोगों की इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता कि एक्चुअल लोगों को चाहिए क्या। तो इसमें क्या हो जाता है, 5 साल का जो पीरियड होता है पूरा, तो उसमें 4 साल तो इसी में निकल जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पीपल लोगों से काम लेना कैसे है, लोगों को काम देना कैसे। यानी अगर वो लीडर कामयाब नहीं हुआ तो वो पूरा फेल्यूर, उसका जो पीरियड है 5 साल का, यानी वो पूरा 5 साल उतना देश पीछे चला जाता है। सो ये जो इलेक्टेड लीडर्स है, इनको लोगों के अनुसार काम करते नहीं आता कि कैसे काम किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी रूरल एरिया का एग्जांपल लें, जैसे हमारे दामनेर का लेते हैं हम, ग्राम पंचायत का, ठीक है, तो ग्राम पंचायत में यहाँ पर कौन कैसा काम करता है, कौन क्या डिज़र्व करता है, ये सब एक इलेक्टेड मेंबर्स को पता होना चाहिए। अगर वो न्यू है तो उसको वो खोज करने के लिए या समझने के लिए बहुत समय निकल जाएगा। ठीक है, सो इलेक्टेड लीडर डू नॉट हैव टू बी मीन्स दे आर नॉट नो अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लोगों का इंटरेस्ट किस में है, वैसे काम करने चाहिए, यानी लोगों को किस में सुधार चाहिए, किस में डेवलपमेंट चाहिए। तो ये सब एक लीडर्स को जल्द से जल्द पता होना चाहिए, और अगर वो करता भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। सो इट लीड्स टू बैड डिसीजंस, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल सपोज सी दैट, अभी आज की अगर हम गवर्नमेंट देखें, अभी सुशांत सिंह का जो केस शुरू है, लोगों ने डिमांड की सीबीआई जांच की, तो फ़ौरन वहाँ पर वो शुरू हो गया। लेकिन अगर डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं होती तो, या फिर जो भी रूलर्स है उनको पता नहीं होता कि लोगों को क्या चाहिए और वो दूसरा ही कुछ करते, तो ये डिसीजन में क्या हो जाता है, एक बैड डिसीजन से यहाँ पर लिया जाता। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ नेक्स्ट, द नेक्स्ट डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। सी दैट,
अभी इतना वर्किंग सिस्टम है, इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज है, लोकसभा राज्यसभा उनके मेंबर्स है, जहाँ पर हम विलेज एरिया में जाते हैं, ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है। अभी कोरोना वायरस का हम एग्जाम्पल देखते हैं, देखो अभी कोरोना के लिए जो भी ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी निधि आ रहा है, पैसे वगैरह जो भी आ रही है मनी, और जो भी मास्क वगैरह आ रहे हैं, सैनिटाइजर्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो सब लोगों तक पहुंच रहे हैं क्या? आपको कितने मिले आपके घर में? नहीं, सिर्फ एक मास्क हमें 2 महीने पहले प्रोवाइड किया गया था। सपोज़ हमारे घर में अगर 8 मेंबर है तो 4 ही मास्क हमें प्रोवाइड किए गए। सैनिटाइज़र तो अब तक प्रोवाइड नहीं हुआ। एक ही बार मेडिसिन प्रोवाइड की गई, एक बोतल पूरे फैमिली के लिए। तो ये क्या है कि इसमें क्या है, करप्शन है। तो यही सब सैनिटाइज़र है, ये जो मास्क है वो गए का, तो ये बाहर बेचे गए, ठीक है। सो सी दैट, सो इस तरह से यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हर कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। सो ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। जो ऑर्डिनरी पीपल है, ऑर्डिनरी पीपल मीन्स दोज हु आर बिलोंग्स टू द लोअर क्लास और अनएजुकेटेड पीपल, दोज हु आर लिविंग इन विलेज एरियाज, मोस्टली दोज पीपल, वो नहीं जानते कि उनके लिए क्या सही है। क्या सही है मीन्स कौन सा नेता, कौन सा रूलर, कौन सा लीडर उनके लिए सही है क्या नहीं। तो बहुत सारे इलेक्शन तो अभी पैसों के दम पर ही चलते हैं। 2000-3000 रुपये देकर इलेक्शन में उनको चुनाव जीता जाता है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आर्गूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी, वी विल सी इन नेक्स्ट पीरियड बिकॉज द लेंदी वीडियोस आई मीन दैट इज़ द मोबाइल डेटा प्रॉब्लम इज देयर, सो that arguments for democracy we will see in next period. Okay, thank you, have a nice day.